Okay. So we will be starting today the next topic of our syllabus, which is from unit 2 only. Yet we have not started with the next unit. So Right. sorry. Yeah. Yeah. I remember a few things were left. Yes. So assignment problem we are going to be continuing in today's lecture. Okay. So first of all, let us understand what is the assignment problem. Actually, when we are having n workers with us, or it's kind of resources, and n jobs, kind of activities. So we can assign each worker to one and only one job, such that cost of the assigning n workers, n jobs is minimum. I'll elaborate you this once again. Basically, this is assignment problem is nothing but the special kind of LPP. So I may write down this as a special LPP. And when we together talk about the assignment problem, transportation problem, and LPP, so what I know is that assignment problem, I'll write down abbreviate it as AP, is always subset of transportation problem, and this is always subset of LPP, but the reverse way is not possible. So any LPP may or may not be transportation problem, any transportation problem may or may not be assignment problem. So this inclusion is possible, the reverse inclusion is not possible. So instead of solving the assignment problem by using the transportation problem, or instead of solving transportation problem by the methods of linear programming problem, for each of the type we adopted a different method. So for LPP, basically we applied the simplex method. For transportation problem, we applied the Modi method. And for assignment problem, we are going to apply the Hungarian method. So each method is very different one. I guess, okay. Who always do the recording? Have you started that? I'm sorry. Yeah. Let me just. Okay. Anyhow, I'm also recording because the Okay. continuous sound is appearing over here. Okay. So you can also do your recording. Yes. So the problem is about assigning n workers, n jobs. So presentation is just about assigning each worker a job. So number of jobs are given over here. So these jobs are n jobs. Similarly, number of workers should be n. Then and then only one job can be assigned to another. So transportation problem was having m rows, that are the sources, and n destinations. So that variation we may not be having here. What we just want is sum of all AIs is equal to sum of all BJs in a transportation problem. So instead of that, we are having a little different structure. We are having the jobs, which can be as a destination you can consider, and we are having workers, which can consider as the sources. So n number of destinations and n number of sources we must have. Again, in similar way, the cost matrix we will be having. C11 is given. This might be the transportation cost or assigning cost or performance cost for that particular worker doing that particular job. C12 is again another cost of a W1 worker doing J2 job, and so on. And X11, X12, and so on, X1n, these are our decision variables. But the different thing, apart from the transportation problem and LPP, we are having here that these decision variables will carry the cost as 1 or 0 only, and that's why supply column has the values 1 1 everywhere, and the demand row are also having the values 1 1 1 everywhere.
So sum of the supply column and sum of the demand column must be n. Then only this entire problem can be considered as assignment problem. And assignment problem just talks about the one-to-one assignment of job to the worker or worker to the job, right? And the further specification here also I have given. Cij is the cost of assigning worker wi to ji or jj, and xij is the value either one if worker wi is assigned the job jj, and it will be 0 otherwise, करेक्ट. सो मैं यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल भी दे देती हूँ. दिस इज J1, J2 and J3 and we are having the workers X, or let me write down that as W1. Okay, W1, W2 and W3, and suppose the W1 worker doing job J1, J2, J3 assigns the different cost. Over here 10, 7 and 8. Over here this is 5, 7 and 9. Over here 12, 13 and 14. So in that case, if I am selecting W1 worker doing his job J1, W2 worker, so rest of decision variables यहाँ पर further decision variable क्या होगा, मीन्स यहाँ पर x11 को हमने 1 असाइन किया है इज इक्वल टू 1. सो x12 क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 0. x13 क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 0. मीन्स वी आर नॉट सेलेक्टिंग W1 डूइंग जॉब J2, we are not selecting W1 worker doing job J3. Am I right? Similarly, W2 worker, suppose I am assigning the job J2, that means obviously x21, which is the decision variable here, will carry the value 0. x23 sorry, this will be assigning the value 0 again here. means यहाँ पर x22 को हम 1 value assign कर रहे हैं. W2 will not be doing job J1 and J3. And in similar way for third row, suppose I have selected this one, then in that case x33 will be having the value 1. In that case x32 will carry the value 0. x31 will carry the value 0. So we are assigning W1 to J1, then W2 to J2, W3 to J3. Now you may think that if it is that simple, that why we are putting out this particular problem in number of symbols, Cij, Xij, Wi, Jj, N and all that stuff of assigning each worker to each job and all. अगर ये straight forward ऐसा है, but the thing is to assign the minimum cost included in it, that we have to think about. So right from the first worker, now let us again readdress this. Suppose I am having jobs J1, J2 and J3, and W1 is assigning, getting the cost as 10, 7 and 8. So out of these three, I should assign the 7 cost, right? Come to W2. Now from these three, I should assign the cost 5, W2 doing J1 job. And apart from that, now I should assign for W3 J1 only, because this is the minimum cost. For the W3 assigning the job J1, J2 as well as J3. But now as we already assigned this 7 and this 5, now I have left in my hand to assign W3 this J3. Am I right? So assignment is not that much easy if we look out the minimum cost. I hope I am clear at this point. Please reply that. Yes, yes. Right. So that's why we are studying this particular method of assigning minimum cost to each worker and each job, so as the total cost of assignment will be minimum. Right. So now again, the same structure here I define. The objective function we define in this way. So what is that objective function? This is minimize z, double summation I is varying from 1 to n and j is varying from 1 to n, Cij into Xij subject to the constraint. Okay, give me a minute. So objective function is to minimize always z
What is that z is? This is summation of j is varying from 1 to n, I is varying from 1 to n. So in our matrix, which is noted over here, the minimum cost is to write down summation of all xij. So x11 plus x12 plus x13 multiplied by c11, I forget, c11, this is c12, this is c13 multiplied by that c21 x21 plus c22 x22 plus c23 x23 plus c31 x31 plus c32 x32 plus c33 x33. Am I right? And this is your objective function, and this we have to minimize. So what will happen, suppose I am assigning x11 the value 1, so this cost gets selected to add up to the total assignment cost, right? Obviously if x11 I am assigning as 1, this cost will not include in your calculation. In second row, when I am selecting W2 doing job J2, in that case this will not be considered in calculation, but x22 I am assigning 1, so this cost will be considered in the calculation. Obviously this cost will not be considered because we have already assigned W2 to J2. In third row, if I am assigning W3 that J3, in that case this will get selected because x33 will be equal to 1 and cost to C33 will get added, and these two costs I can discard out. So I am having my objective function, the exact value as C11, C22 and C33, and this will be minimum cost if I am following this particular algorithm which we are going to study over here. Alright, so ये algorithm हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, and this algorithm is called as the Hungarian algorithm. So all that conditions are specified over here, that summation of j is varying from 1 to n, xij is equal to 1 for all I, and summation of xij varying from I is equal to 1 to n is equal to x11 for all j. xij is equal to 0 or 1 for all I and j, right? Rest of all otherwise case में ये ऐसा होगा. Means what? I'll just elaborate this one equation. What this equation is? This is, ma'am, this is new chapter. sorry, it's not new chapter. It's included in. It's This is included in the second chapter only. Okay. Huh? Okay. So your this condition I'm going to elaborate. This is x11 plus x12 plus x13 is equal to 1. Then x21 plus x22 plus x23 is equal to 1, and x31 plus x32 plus x33 is equal to 1. And what will be the second condition? The second condition will be transpose of this entire matrix. So this will be x11 plus x21 plus x31 is equal to 1, x12 plus x22 plus x32 is equal to 1, and x13 plus x23 plus x33 this is equal to 1. So anyhow हर एक रो में एंड हर एक कॉलम में हमें सिर्फ एक असाइनमेंट करनी है, एंड ऐसी वे में करनी है कि जहाँ पर हमें मिनिमम कॉस्ट मिल जाए, राइट? बट एनी हाउ दैट हंगेरियन मेथड इज़ ऑल्सो नॉट फुल प्रूफ, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर टाई होता है वैल्यूज़ में, वहाँ पर वी मे और मे नॉट गेट मिनिमम वैल्यू फॉर एनी रैंडम चॉइस. सो रैंडम चॉइस कैन बी डिफाइंड in a little different way. So we'll come across with that type of problem as well. So first of all we'll start with the basic problems and basic things about the assignment problem. Now like the transportation problem as well, यहाँ पर भी हमें दो टाइप के assignments problem मिल सकते हैं, balanced and unbalanced. So type 1 is the balanced assignment problem if number of rows is equal to number of columns, as obviously, right? And unbalanced assignment problem where we'll get if the number of rows are not equal to number of columns. So in that case either the row or the column we can add and we can proceed to solve the problem as well, right? For example, again here suppose I should not use this symbol x1, job j1
J2, J3, and suppose we are having the persons A1, A2 over here, and this cost matrix is given 12, 0, 5, 7, 5, 9. So this is your unbalanced assignment problem, because we are having 3 jobs to do and we are having 2 workers to assign with. So I can assign any 2 job to these 2 workers, but third job will remain unattempted. In that case, we add a row here as the third person, but the cost of that job or that worker doing that job is 0. So in that case, now A3 is going to be assigned with any one of the job, with subject to the minimum cost which we are going to find out for this particular problem. अगर यही columns कम होता तो हम column add कर देते with all 0 entries. So now this is balanced one, and with this balanced assignment problem we can have our solution. So only these 2 types we are having. And now let us go for the Hungarian method. So likewise in transportation problem, any kind of initial basic feasible solution we are not going to do over here. We are directly going for the Hungarian method to solve the assignment problem. But it has 2 different methods. Phase 1, row and column reduction. This is also called as the matrix reduction. Matrix reduction. And phase 2 is optimization the problem. So first of all, we'll try to focus on what is this row and column reduction. So step 1 is subtract minimum value of each row from the entries of that row, and step 2, subtract minimum value of each column from the entries of that column. So ये हमारी सबसे इम्पोर्टेंट मेथड्स है, रो एंड कॉलम रिडक्शन मेथड. सो ये जब तक हम नहीं करते, वी कैन नॉट प्रोसीड टू असाइन द जॉब्स टू द वर्कर्स और ऑपरेटर्स टू द जॉब्स. Okay, let me give you example over here. Now this is your assignment problem. 5 jobs are given and 5 operators or workers are there, and this is the transportation cost matrix. ये आपका cost matrix है. So we are doing here row reduction and column reduction, means we are going to find out here the subtraction of each row and each column, identifying the least element of each row and each column. So जो सबसे least element है वो हमें बाकी member से subtract करना है. Like here for first row I am having 7 as the minimum number. From row 2, this 6 is the minimum number. From row 3, 6 is the minimum number. For row 4, 9 is the minimum number, though appeared at 2 places. 5, 7 is the minimum number. So we will be identifying these minimum numbers from each of the row, and we are going to subtract this number from each other entry. So what we are going to get over here? I'll just erase this annotation and let us now find out. So first row you are going to get 9 minus this 7, it's 2. So यहाँ पर वो cost reduction matrix ले चुके हम यहाँ पर. So let us elaborate that. This is 11 minus 7, 4 here. 14 minus 7, 7 here. Then 11 minus 7, it's 4 here, and 7 minus 7, 0 here. So जैसे हम minimum cost choose करते हैं, उस पर्टिकुलर प्लेस पर सब्ट्रैक्शन के बाद 0 आने वाला है, राइट. एंड दैट 0 इज नथिंग बट आवर असाइनमेंट और मे बी आवर असाइनमेंट. सेकंड रो we are having 6 as the minimum entry, right? And now subtract each other entry from this 6. Subtract this 6 from each other entry. So here we are having 0. Here for 15 minus 6, 9. 13 minus 6, 7. 13 minus 6, 7. And this is 10 minus 6, 4. Similar way, continue for the third row, fourth row, and fifth row. So for third row, this is 12 minus 6, 6. 13 minus 6, 7. 6 minus 6, 0 here. Then 8 minus 6, 2 here, 2 here. Fourth row,
11 minus 9 2, 9 minus 9 0, 10 minus 9 1, 12 minus 9 3, and 9 minus 9 0. So fourth row is completed. Fifth row, 7 minus 7 0, 12 minus 7 5, 14 minus 7 7, 10 minus 7 it's 3, and 14 minus 7 7 once again. Fifth row is completed. Correct? Now once you have row reduction, उसके बाद आपको कॉलम रिडक्शन लेना है. Am I right? And after completion of these two steps, our matrix will be ready with matrix reduction. So this is entirely called as the matrix reduction method or matrix reduction phase. So first with row, second with column. Remember that sequence. Now let us try to identify column wise. अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कॉलम वाइज एंट्रीज एज वेल. सो रो वाइज हमने कंसिडर कर लिया मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द रो एंड वी सब्ट्रैक्टेड दैट वैल्यू फ्रॉम द अदर मेंबर्स. एंड नाउ फोकस ऑन द कॉलम. नाउ फॉर कॉलम 0 इज द मिनिमम एंट्री, सो वी विल बी हैविंग नो चेंज इन दिस कॉलम बिकॉज 0 एंट्री है और 0 मैंने बाकी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दिया था. आई एम गोइंग टू गेट सेम वैल्यू. So 2 minus 0 0, 0 minus 0 0, 6 minus 0 6, 2 minus 0 2, 0 minus 0 0. इस रो इस कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में 0 इज द एंट्री, सो आई विल बी हैविंग 4 minus 0 4, 9 minus 0 9, 7 minus 0 7, and 0 minus 0 0, 5 minus 0 5. फर्दर कॉलम में, इस कॉलम में 0 इज द एंट्री, सो कॉलम इज नॉट गोइंग टू चेंज. फोर्थ वाले कॉलम में यहाँ पर, अब यहाँ पर 0 एंट्री नहीं है, आई एम हैविंग द मिनिमम नंबर 2, सो ये कॉलम मेरा चेंज हो जाएगा 4 minus 2, सो 2 हियर, 7 minus 2 5 हियर, 2 minus 2 0 हियर, 3 minus 2 1 हियर, एंड 3 minus 2 1 हियर. लास्ट कॉलम में भी 0 की एंट्री है, सो कॉलम इज नॉट गोइंग टू चेंज. सो हमें यहाँ पर रो रिडक्शन मैट्रिक्स या रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन मैट्रिक्स एंटायरली दोनों को मिला के मैट्रिक्स रिडक्शन क्या मिलने वाला है. आई एम गेटिंग दैट मैट्रिक्स रिडक्शन इन दिस वे, दिस वन. करेक्ट? सो ये है हमारा फेज 1. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 1 वी कैन असाइन द वैल्यूज, राइट? But before that I have to go for the step 2 or not step 2, it's phase 2, which is the optimization of the problem. So यहाँ पर हमें क्या करना है, that let us try to understand. So this is your next step and ये है आपकी condition for optimality. So जैसे transportation problem में भी before we apply the Moti method, we checked out what are that UIs and VJs, right? And then we defined that DIJs also, and based on DIJs we defined our optimality condition in transportation problem. So likewise our condition of optimality is this step, optimization of problem. Now check whether the number of square marked is equal to number of rows of the matrix. So optimality हमें कैसे check करनी है? I'm sorry, step 3 I forgot. I'm sorry. Yes, before we go for the step 4, to check the optimality we'll follow the step 3. Draw minimum number of lines to cover all the zeros of the matrix. Procedure, ये procedure कैसे करनी है? Row scanning. Start from the first row, ask the following question: is there exactly 1 0 in that row? If yes, mark a square around that 0 entry and draw the vertical line passing through that 0, otherwise skip that row. So अब हमें ये स्कैनिंग करनी है. How we are going to scan? हमें 0 एंट्री है या, so first of all we'll go for rows and then 2 columns. So throughout the Hungarian method we'll follow this method, first rows then columns, and once columns finished, once again we'll get back to rows, then columns, again rows, then columns. So that flow we will maintain. So what we have to do, the row scanning means
check out whether in any row we are having zeros or not. If there is exactly 1 0 row, that 0 entry we are going to mark. So हमें mark क्या करना है, 0 वाली entry mark करनी है, right? Then draw a vertical line passing through that 0. Otherwise skip that row. अगर 0 entry नहीं है, then we'll skip that row and we'll go to next row. Again we'll repeat this process and we'll scan all the rows of that particular matrix. After scanning last row, check whether all zeros are covered with these lines or not. If yes, go to step 3. Otherwise do the column scanning. So हमें column scanning करनी है after we complete all the row scanning. So column scanning भी कैसे करनी है? In similar way, ask yourself the question starting with the first column, that is there any exactly 1 0 in that column? If yes, mark a square around that 0 and draw horizontal line passing through that 0. Otherwise skip that row. अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, मीन्स क्या करना है, उस कॉलम की या रोज की एंट्रीज आपको डिस्कार्ड करनी है. सो आई कम टू दिस पार्ट. सो यहाँ पर ये फेज 1 यहाँ पर कंप्लीट हो गया. आई गॉट दिस मैट्रिक्स रिडक्शन, रिड्यूस मैट्रिक्स यू कैन से. एंड अब मुझे यहाँ पर असाइनमेंट करनी है. कैसे करनी है? सो आई गो फर्स्ट ऑफ ऑल रो वाइज. दिस इज योर फर्स्ट रो. So check out that whether this row contains any 0 or not. Yes, it is containing. So mark that 0. और हम रो वाइज 0 की एंट्री मार्क कर रहे हैं. सो मुझे यहाँ पर ये कॉलम ये करना है, कैंसिल करना है. सो व्हाट यू आर एग्जैक्टली डूइंग, यू आर डिस्कार्डिंग द अदर एंट्रीज. करेक्ट. सिमिलरली गो टू द रो 2 नाउ. सो रो 2 पर जाना है एंड मुझे यहाँ पर मार्क करनी है 0 की एंट्री कहाँ पर है वो भी सिंगल है. अगर डबल होती तो मुझे स्किप करना पड़ता, क्योंकि सिंगल एंट्री वाले रोज ही हम या सिंगल एंट्री वाले कॉलम्स ही हम फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क करेंगे. सो आई एम गोइंग टू मार्क दिस 0 हियर, राइट. सो आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड नाउ दिस रो. निखिल, काय प्रॉब्लेम आहे? आवाज खूप येतोय. अरे शांत असल्यामुळे थांब ना थोडंसं. So this row column wise this 0 entry column wise I drafted, I'm sorry, row wise I drafted, I marked, and column wise I discarded the rest of entries. So ये जो column wise हम line draw कर रहे हैं, straight line, that is going to hamper your this 0 as well, right. So ये हमें करना ही है बाय हुक और क्रूक. सो रो वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल विल चेक आउट वेदर सिंगल 0 इज देयर और नॉट इन दैट पर्टिकुलर रो. एंड वो रो हम वो एंट्री 0 की हम सेलेक्ट करेंगे, मीन्स वहाँ पर बॉक्स ड्रॉ करेंगे. एंड द रेस्ट ऑफ ऑल अदर एंट्रीज वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड. तो वहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे. सिमिलरली फॉर सेकंड रो वी हैव डन. नाउ कम टू द थर्ड रो. थर्ड रो हमें इसमें हमें चेक करना है कि 0 की एंट्रीज कहाँ पर है. 2 जगह पर है. सो रैंडम सिलेक्शन राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू डू. सो हमें ये रो स्किप करनी है. सो वी आर नॉट गोइंग टू मार्क एनी 0 फॉर दिस रो. कम टू द नेक्स्ट रो. अब यहाँ पर कितनी जीरोज है? एक ही 0 है. सो मार्क दैट. एंड हम रो वाइज यहाँ पर 0 की मार्किंग कर रहे हैं, इसलिए कॉलम को हमें स्ट्रेट लाइन निकाल के डिस्कार्ड करना है, कैंसिल करना है, ऐसे बोल सकते हो आप. कम टू द फिफ्थ रो. सो यहाँ पर हमें एक एंट्री मिल गई. कम टू द फिफ्थ रो. अब यहाँ पर कोई भी 0 की एंट्री नहीं बची है. सो नाउ आई कैन गो कॉलम वाइज. सो रो हमने हर एक यहाँ पर 1 by 1 डिफाइन किए. 0 की एंट्री है तो मार्क की, एंड जिस एंट्री को हम मार्क कर रहे हैं उस कॉलम को हमने स्ट्राइक आउट किया है. ठीक है. Now same process we have to do for the columns as well. Now यहाँ पर जो रो के लिए हम एंट्रीज कर रहे हैं that is called as the row scanning, right? And column के लिए जो एंट्रीज हम कर रहे हैं now that will be called as the column scanning. So let us now go for the column scanning. अब यहाँ पर कॉलम वाइज आता है तो फर्स्ट कॉलम में कुछ बचा नहीं है, सेकंड कॉलम में कुछ बचा नहीं है, थर्ड कॉलम के लिए जाते हैं. सो थर्ड कॉलम में यहाँ पर 0 सिंगल है, उसे मार्क कर देते हैं हम.
सो कॉलम वाइज अब हम जीरो की एंट्री चेक कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पर पूरा रो फर्दर मार्क करना है. सो यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन निकाल लेनी है. सो आई जस्ट मार्क दैट स्ट्रेट लाइन इन दिस वे. ठीक है. नाउ नेक्स्टली गो टू द नेक्स्ट कॉलम, फोर्थ कॉलम. अब यहाँ पर कोई भी जीरो की एंट्री नहीं बची है, राइट. एंड फिफ्थ कॉलम में यहाँ पर कोई भी जीरो की एंट्री नहीं बची है. सो अगेन आई विल कम टू द रो. सो फिर से मैं नेक्स्ट कलर के साथ यहाँ पर रो पे आती हूँ. यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है. सेकंड रो कोई भी जीरो नहीं है. थर्ड रो नो जीरो. फोर्थ रो नो जीरो. फिफ्थ रो नो जीरो. अगेन गो टू कॉलम वाइज. नो जीरो एंट्री, नो जीरो एंट्री, नो जीरो एंट्री, नो जीरो एंट्री, नो जीरो एंट्री. सो नाउ आई हैव entered into the loop with no zero entries to any column or any rows. So I can stuck at this position after following the step 1 of row reduction, step 2 of column reduction, and step 3 of checking the optimality condition with this allocations of 0. Am I right? So allocations of 0 are not completed. कितने allocations हम यहाँ पर कर चुके हैं? I'll just mark that जो स्क्वायर के फॉर्म में है. This is 1, ये मार्क किया हमने. 2, this we marked. 3 and this we marked 4. So अब हमें allocations कहाँ पर होना चाहिए? 4 allocations हमारे पास मिल चुके हैं. I should have 5 allocations over here. एंड वो 5 एलोकेशंस मिलने के लिए अब हम प्रोसीड नहीं कर सकते टिल दैट स्टेप 3 वॉट एवर वी ड्रिल्ड आउट, टिल दैट स्टेप थर्ड स्टेप वी कंप्लीटेड, बट देन ऑनवर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू असाइन द जीरोस. सो हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम मेनली इस मेथड के साथ जीरोस जहाँ जहाँ पर है उनके एलोकेशंस को एड्रेस कर रहा है. gives zero allocations. क्यों कर रहा है? Now my main question is this one कि हम ये प्रोसेस क्यों फॉलो कर रहे हैं? If you are going to do that process, जीरो के allocations ही हमारे पास आ रहे हैं, but why zeros? Why not any other number? The answer of this question, that why we are assigning zeros as our allocations, lies in your first 2 steps. What you are doing with rows? रोज को आप कर क्या रहे हो? आप मिनिमम नंबर फाइंड आउट कर रहे हो एंड बाकी अदर मेंबर से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो. मीन्स दैट जीरो यू आर चूजिंग योर मिनिमम एंट्री. सो अगर मैं फर्स्ट ऑपरेटर को फिफ्थ वाले ऑपरेटर के साथ ज्वाइन करती हूँ या असाइन करती हूँ, दैट मीन्स फर्स्ट वाला ऑपरेटर जो चार्जेस लगा रहे हैं वो मिनिमम चार्जेस लगा रहे हैं डूइंग दैट जॉब 5. सो आई एम सेलेक्टिंग, दैट मीन्स आई एम सेलेक्टिंग द मिनिमम कॉस्ट. करेक्ट. सिमिलरली अब यहाँ पर अगर मुझे जीरो मिल रहा है, इफ आई एम सेलेक्टिंग दैट मीन्स सेकंड वाला ऑपरेटर जो है फर्स्ट वाला जॉब करने के लिए मिनिमम कॉस्ट ले रहा है. सो वी आर असाइनिंग दैट कॉस्ट. हम यहाँ पर जीरोस को एलोकेट कर रहे हैं, मीन्स वी आर चूजिंग अवर मिनिमम कॉस्ट. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन. यस. नाउ हम स्टक कहाँ पर हुए हैं? हमें 5 एंट्रीज मिलनी चाहिए, 5 जीरो एंट्रीज मिलनी चाहिए थी, वो हमें नहीं मिली है. वी गॉट ओनली 4 एंट्रीज हियर. सो वो 5th एंट्री फाइंड आउट करने के लिए मुझे ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा. नाउ लॉजिकली आई कैन अंडरस्टैंड दैट कहाँ कहाँ पर आपकी एंट्रीज हो चुकी है. फर्स्ट रो में, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो. तो 5th रो बचा है एंड 4th कॉलम बचा है. सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी नेक्स्ट एंट्री आनी चाहिए लॉजिकली. करेक्ट. बट थ्रू दिस मेथड अ कपल ऑफ फर्दर स्टेप्स ऑल्सो वी हैव टू कंप्लीट, देन ओनली वी कैन आंसर इट प्रॉपरली. Now what are that remaining steps? Let me explain you with the theory part, and then we'll get back to that problems once again. So this row scanning and column scanning we completed, and now come to the next part of that phase 2. Now here check whether the number of squares marked is equal to number of rows or not. तो हमारे यहाँ पर हमने जितना प्रॉब्लम कंप्लीट किया है, दिस कंडीशन वॉज नॉट सेटिस्फाइड. नंबर ऑफ स्क्वायर मार्क्ड
जितने भी ज़ीरोज़ हमने स्क्वायर के साथ मार्क किए थे वो 4 थे, एंड दैट आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स. सो हमारे नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स असाइनमेंट प्रॉब्लम में सिमिलर है. तो आप आइदर रो काउंट कर सकते हो या कॉलम काउंट कर सकते हो. तो उतने नंबर ऑफ आपके ज़ीरोज़ मार्क होने चाहिए, वो हमारे नहीं हुए इस प्रॉब्लम में, जो प्रॉब्लम हम डील कर रहे थे. राइट? अगर ये होते हैं देन इट इज़ ऑप्टिमल. अगर नहीं होते हैं then I have to go for the next step. So I read it out once again. Check whether the number of square marked is equal to number of rows or columns or not. If yes, then the optimality is reached and allocations we can write down. Otherwise, go to the step 5. So what is that step 5? Identify minimum value from undeleted cell values. So जितनी भी undeleted cells है या अनडिलीटेड रोज या कॉलम्स बचे हैं, वहाँ से हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? मिनिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. एंड देन वी हैव टू डू द स्टेप्स A, B and C. Add minimum deleted cell value at intersection points of the present matrix. सो जो स्ट्राइक आउट करके रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करके जो मैट्रिक्स हमने तैयार किया है ना, वहाँ पर जितने भी इंटरसेक्शन आ रहे हैं लाइंस के, वहाँ पर हमें ये मिनिमम वैल्यू जो है वो ऐड करनी है. दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट, सब्ट्रैक्ट मिनिमम अनडिलीटेड वैल्यू फ्रॉम ऑल द अनडिलीटेड सेल वैल्यूज. सो ये सेकंड पार्ट अप में कंप्लीट करना है. एंड ऑल अदर एंट्रीज आर सिमिलर. सो व्हाट वी आर डूइंग विद दिस प्रोसेस, वी आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ रीअलोकेशंस. जो हमने मोदी मेथड के साथ किया था, वही रीअलोकेशंस हम यहाँ पर कर रहे हैं. एंड अगर ये पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, देन अगेन आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप 3. मीन्स रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग करके मुझे फिर से ज़ीरो के एलोकेशंस कहाँ पर हो रहे हैं वो क्रॉस चेक करना है. राइट? नाउ व्हाट दैट एग्जैक्टली मीन्स इन दैट मैट्रिक्स, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सो रो स्कैनिंग के साथ हमने ये 3 कॉलम जो है वो डिस्कार्ड किए थे, या इन 3 कॉलम्स को हमने 3 कॉलम्स के लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की थी. फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन. रो वाइज वी आइडेंटिफाइड दिस ज़ीरो, वी स्क्वायर्ड इट, एंड वो जो कॉलम था वो हमने लाइन ड्रॉ करके डिस्कार्ड कर दिया. देन सेकंड रो में ये एंट्री हमें मिली, वी डिस्कार्डेड दिस कॉलम. थर्ड रो में हमें 2 ज़ीरोज़ की एंट्रीज मिल रही है, इसलिए हमने एलोकेशन यहाँ पर नहीं किया. रैंडम एलोकेशंस वी आर नॉट गोइंग टू डू राइट नाउ. ठीक है? देन फोर्थ रो के लिए अगेन वी एड्रेस दिस ज़ीरो, वी स्ट्राइक्ड आउट दिस कॉलम. सो वी आर हैविंग नाउ 3 straight lines over here which are coming from that allocations of 0. Coming to the column scanning, I repeat that process जो हमने priorly complete की है. So row 1 में कोई column 1 में कोई 0 एंट्री नहीं है, रो column 2 में नहीं है, column 3 में यहाँ पर 0 एंट्री मिली. We mark that and we striked out that row. फोर्थ वाले कॉलम में 0 एंट्री ये ऑलरेडी स्ट्राइक आउट हो चुकी है, सो वी डोंट हैव दैट. राइट? एंड इफ वी कंटिन्यू विद द रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग, अपार्ट फ्रॉम दिस ज़ीरोज़ वी डोंट हैव एनी फर्दर ज़ीरो फॉर द एलोकेशन. सो इन दैट केस वी हैव टू नाउ गो फॉर दैट नेक्स्ट स्टेप. करेक्ट? तो ये नेक्स्ट स्टेप क्या है? चेक द नंबर ऑफ स्क्वायर मार्क्ड is equal to the number of rows marked, rows of that matrix or column of that matrix or not. If yes, then we reach to the optimality. If not, go to the step 4. और ये step 4 क्या है? Step 4 है ये, identify the minimum value from the undeleted cell values. अब यहाँ पर undeleted cell values कौन सी है? 7, 2, 7, 5, ये 0 डिलीट हो चुका है. 1, this one, 7 and 1. So out of this marked values, ये values हमारी undeleted है.
अब इन सारे वैल्यूज में से मिनिमम कौन सा है 1, तो आप ये 1 कंसिडर कर सकते हो, ये 1 या ये 1 आपकी मिनिमम एंट्री है इन नॉन डिलीटेड सेल्स के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रोज और कॉलम्स, मैं सेल्स की बात कर रही हूँ अभी। सो 1 इज द मिनिमम वैल्यू। तो करना क्या है इस मिनिमम वैल्यू के साथ, ऐड मिनिमम अनडिलीटेड सेल वैल्यू एट इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंट मैट्रिक्स। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स किसके हैं, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ना 1 2 3 एंड दिस इज 4, इसके इंटरसेक्शन के वैल्यूज से हमें वहाँ पर हमें ये ऐड करनी है। सो दिस इज 6, यहाँ पर हमारे पास एंट्री है 6 में हम इस 1 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8। Am I right? So let us check out whether in next matrix it is get added. We have two also as an intersection. Yes, I'm just coming to that. So 7 and 8 हमें ये entries मिली है। Then we are having here 2 as well. So वहाँ पर भी हमें ये 1 ऐड करना है, so ये हो जाएगा 3. So we are reallocating that. Right? तो ये हो गया। फर्दर हमें स्टेप क्या फॉलो करनी है, subtract the same value, right, from all undeleted cell values. सो हमें ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। कहाँ से सब्ट्रैक्ट करनी है, 7 -1 2 -1 7 -1 दिस इज 5 -1, यहाँ पर 1 -1 मीन्स 0, यहाँ पर 1 -1 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 1 6 4 0 0 6 0। सो लेट अस गेट टू द नेक्स्ट मैट्रिक्स जो हमने यहाँ पर डाला है 6 1 6 4 0 0 0 0 6 0। एंड यहाँ पर तीन जगह पर हमारी एंट्रीज चेंज हो चुकी है विद दैट स्टेप 4, करेक्ट। एंड उसमें भी थर्ड पार्ट ऑल अदर एंट्रीज आर सेम। सो आई जस्ट मार्क दैट हमने कहाँ पर चेंज किया है, दीज वैल्यूज बी चेंज, करेक्ट। अब ये मार्क्ड वैल्यूज जो है उनको छोड़ के रेस्ट ऑफ एंट्रीज हमारी सिमिलर है। We did not alter any of the rest of entries, correct? And now once we have this reallocation, now I can go for step 3 and I can check once again row scanning, column scanning, and then I can assign my 0 values to that. So ये 0 values अब assign करते हैं। Let us get back to the row entries once again. यहाँ पर 0 है, yes, mark that, तो मैं यहाँ पर square mark कर रही हूँ and I'm discarding this column, cancel करते हैं। Then come to the next row, यहाँ पर 0 है, मैंने मार्क किया and now discard this column। coming to next row, यहाँ पर 2 zeros है तो अभी तो मैं allocate नहीं कर रही हूँ। come to the next, यहाँ पर भी 3 zeros है, I cannot allocate। लास्ट रो में यहाँ पर 1 0 है तो मैं इसे सॉरी in the same row we have 2 zeros. हाँ बट ये डिस्कार्ड हो चुका है ना नाउ। Okay. सो नाउ आई कैन चूज दिस। सो यहाँ पर मैं ये कॉलम में डिस्कार्ड कर सकती हूँ। सो आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड दिस, ठीक है। देन अब कॉलम वाइज करते हैं, रो सारी खत्म हो गई, लेट अस डू कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम कुछ नहीं बचा है, सेकंड कॉलम यहाँ पर 0 एंट्री है, आई जस्ट मार्क दैट। सो ये कॉलम हमारा रो हमारा हट जाएगा, राइट। सो दैट वी कंप्लीटेड। कम टू द नेक्स्ट कॉलम, यहाँ पर एक 0 एंट्री बची है, दिस वन। सो आई एम गोइंग टू नाउ डिस्कार्ड दिस कॉलम। अब यहाँ पर 4th कॉलम में कुछ नहीं है, 5th कॉलम में भी कुछ नहीं बचा है, राइट। अब यहाँ पर एलोकेटेड जीरोज आप देख सकते हो, कौन से है एलोकेटेड जीरोज। मैम आई थिंक इन द 4th row we were having 2 zeros, so how can it be cancelled? 4th रो, तो 4th रो हमने सेलेक्ट ही नहीं की थी ना, हम कॉलम वाइज जा रहे हैं। कॉलम वाइज आई एम सेलेक्टिंग दिस। Okay. मेरे यहाँ पर 4 zeros है, देखो 1 2 3 4, लेकिन कॉलम वाइज जाते हुए हमने इसे सेलेक्ट किया है,
हमने रो वाइज सेलेक्ट नहीं किया है इस जीरो को, हमने कॉलम वाइज सेलेक्ट किया है इस जीरो को, एंड कॉलम वाइज हमने जीरो को सेलेक्ट किया, इसलिए रो वाइज ये पूरी रो हमने हटा दिया। आई रिपीट वंस अगेन, जीरो अगर आप कॉलम वाइज चूज कर रहे हो तो रो आपको डिस्कार्ड करनी है, एंड जीरो अगर आप रो वाइज सेलेक्ट कर रहे हो तो कॉलम आपको डिस्कार्ड करना है। ठीक है, Yes, ma'am. ओके, आई जस्ट रिपीट दिस स्टेप वंस अगेन, क्योंकि बहुत सारे जीरोस है, सो वी आर माइट बी गेटिंग कंफ्यूज। हाँ ठीक है, ये मैट्रिक्स हमें मिल गया। आई होप यू एग्री विद दिस, एंड नाउ लेट अस डू एलोकेशन स्टेप बाय स्टेप। सो मैं रो वाइज पहले जा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर जीरो मैंने चूज कर लिया। नाउ दिस कॉलम आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड, एग्री? Yes, ma'am. नेक्स्ट रो में अब ये जीरो है, इसे सेलेक्ट कर दिया, ये कॉलम हट गया। ठीक है, नेक्स्ट रो में यहाँ पर दो जीरोज है, सो आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट, आई स्किप दिस रो। नेक्स्ट रो में यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर एंट्री की, तो यहाँ पर नहीं होगा, थर्ड रो में नहीं है। नेक्स्ट रो में थ्री जीरोज है, सो आई एम नॉट गोइंग टू चूज एनी वन। रैंडम जीरोज का सिलेक्शन मुझे अभी तो नहीं करना है, मैं बाद में करूँगी, और क्यों करना है ये भी बताऊँगी, अभी तो नहीं करना है, सो आई एम नॉट गोइंग टू सेलेक्ट दैट। कम टू द फिफ्थ रो, यहाँ पर एक ज़ीरो है, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया और मैंने कॉलम को हटा दिया, तो रो वाइज मेरा पूरा काम हो गया। अब कॉलम वाइज चलते हैं। कॉलम वाइज मैं ज़ीरो की एंट्री ऑलरेडी है यहाँ पर ना, तो मैं कॉलम वाइज जाऊँगी ही नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा मुझे। ठीक है, देन इस कॉलम वाइज कुछ भी एंट्री नहीं हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर सिंगल एंट्री ज़ीरो की दिख रही है, तो मैं इस पूरे रो को अब डिस्कार्ड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे मिल गया। कम टू द नेक्स्ट कॉलम, यहाँ पर अगर चलते हैं तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एक ज़ीरो, ये तो ज़ीरो हट चुका है, ये ज़ीरो, तो मुझे इस रो को डिस्कार्ड करना है। अब मेरी सारी रोज एंड सारी कॉलम्स में ज़ीरोज़ के एलोकेशन हो चुके हैं, एंड नाउ आई कंप्लीटेड विद द एलोकेशन। अब एलोकेशन क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो वन का एलोकेशन हुआ है, मैं इसे वन वन क्या बोलूँ, A1 बोलती हूँ मैं इसे, A1, A2, A3, A4 एंड दिस इज A5। तो A1 की जो एलोकेशन हुई है वो किसके साथ हुई है, 5 के साथ। A2 की एलोकेशन किसके साथ हुई है, A2 की एलोकेशन इस जीरो के साथ, सो इट्स 1। देन A3 की एलोकेशन किसके साथ हुई है, 3 के साथ। A4 की एलोकेशन किसके साथ हुई है, 2 के साथ, एंड A5 की किसके साथ हुई है, 4 के साथ। राइट, ये हमारा एलोकेशन मिल चुका है। सो A1, A2, A3 एंड A4, इफ दीज आर द ऑपरेटर्स और वर्कर्स, देन 1, 2, 3, 4, 5 दीज आर द जॉब्स। सो फिफ्थ वाला जॉब A1 को असाइन किया हमने, फर्स्ट वाला जॉब A2 को, थर्ड वाला जॉब A3 को, सेकंड वाला जॉब A4 को, एंड फोर्थ वाला जॉब A5 को असाइन किया हमने। करेक्ट, अब इसकी कॉस्ट चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो याद रखो, सो A1 का 5 के साथ, आई गेट बैक टू दैट कॉस्ट मैट्रिक्स। हाँ, A का 5 के साथ, सो हमारा जो मिनिमम कॉस्ट आएगा ना वो ये आएगा 7, राइट। देन A2 का किसके साथ किया था हमने, 1 के साथ, तो 6 आएगा। A3 का किया था 3 के साथ, तो यहाँ से 6 आएगा। A4 का किया था आई गेस 2 के साथ, तो यहाँ से 9 आएगा। एंड A5 का किया था किसके साथ, आई गेस 5 के साथ, तो ये आएगा 14। तो ये आपकी मिनिमम कॉस्ट हो गई थ्रू दिस मेथड। वी मे हैव डिफरेंट मेथड आल्सो टू गेट द मिनिमम कॉस्ट थ्रू द असाइनमेंट प्रॉब्लम, बट हंगेरियन मेथड गिव्स यू इन दिस वे। सो हमारी जो टोटल कॉस्ट आ गई, दिस विल बी 13 + 9, 19 + 9 28 एंड दिस 4 32 + 10 42. So that's our minimum cost by solving entirely through the Hungarian method. तो मैं रिपीट करती हूँ फिर से स्टेप 1 रो रिडक्शन है, स्टेप 2 कॉलम रिडक्शन। इन दोनों को मिला के हम मैट्रिक्स रिडक्शन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सो वंस यू डू विद दिस, नाउ यू हैव टू गो फॉर द फेज 2, जहाँ पर हम ऑप्टिमिलिटी चेक करते हैं, एंड अगर है
तो हम स्टॉप करेंगे मेथड. अगर नहीं है देन विल गो फॉर द री एलोकेशंस. सो स्टेप 3 है कि चेक करो कि आपके नंबर ऑफ ज़ीरो जो है वो अलोकेट प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं, थ्रू द रो स्कैनिंग, थ्रू द कॉलम स्कैनिंग. वंस यू डन विद दैट, ज़ीरोज़ को आपको अलोकेट करना है. अगर कोई भी ज़ीरो किसी भी रो या कॉलम में अलोकेट नहीं हो रहा है, वी आर हैविंग अनडिलीटेड एंट्रीज, इन दैट केस मिनिमम एंट्री को चूज करके फिर से वो मिनिमम नंबर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर ऐड करने हैं एंड नॉन इंटरसेक्शन सेल वैल्यूज से वो सब्ट्रैक्ट करने हैं. सो वी गॉट द रीअलोकेटेड मैट्रिक्स एंड फिर से आपको रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग करके ज़ीरोज़ को अलोकेट करना है. करेक्ट? So that is entirely my assignment problem. Okay, now let me know if you are having any problem, or shall we solve one problem by our own and then you can ask your questions. ये 5 को 4 कैसे हुआ है? Did we done an Because I think I'm the sorry. optimality not reached here. Okay. So I made a mistake over here. ये 42 नहीं आएगा, 38 आ रहा है. हमने फर्स्ट को फिफ्थ और साइन कर लिया ना, सो ये एंट्री नहीं आएगी. फोर्थ वाली ये एंट्री आएगी. सो इट विल बी 10 एंड दिस इज 4 रिड्यूस करते हैं, सो ये हो जाएगा 38. हाँ, यस, योर क्वेश्चन. यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? Here when we at this stage where we got the allocations, here again the number of deleted columns and rows are not equal, so the optimality is still not reached. That condition is नहीं, what is the condition of optimality over here? Zero allocated zeros is equal to number of rows. So over here we are having 5 allocated zeros, na? That is equal to number of rows or number of columns. So we reach to the optimal condition. okay. अगर लेस देन दैट आते हैं तो वी आर नॉट रीचिंग टू द ऑप्टिमलिटी, वी हैव टू रीअलोकेट. Okay. ठीक है? Problems are very simple. We can go for this problem. Will you try it? Just note down this matrix and try out the row reduction and column reduction first. Okay. It's not getting selected. How many columns you are having? 5. Okay. So this is your balanced transportation problem. Okay. So let me assign here. This is J1, J1, J2, J3, J4, and this is J5. And operators as A, B, C, D, and E. Cost we are having is this is 10, 5, 13, 15, 16, 3, 9, 18, 13, 6, 10, 7, 2, 2, 2,
and 7, 11, 9, 7, 12, 7, 9, 10. This is 4 here and 12 here. So this is your assignment problem. ये हमें सॉल्व करना है. Alright. Now first of all we'll try for the row reduction method. तो मैं इसे सेलेक्ट करके रखती हूँ. Give me a minute. Okay. So यहाँ पर हम कॉलम रिडक्शन लगाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स योर फर्स्ट स्टेप. रो रिडक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन कॉलम रिडक्शन. सो ये है हमारी स्टेप 1. सो रो रिडक्शन करना है मीन्स व्हाट, मुझे लीस्ट कॉस्ट चूज करनी है एंड रो वाइज वो लीस्ट कॉस्ट बाकी मेंबर से सब्ट्रैक्ट करने. सो 5 इज द लीस्ट कॉस्ट हियर. तो यहाँ पर बचेगा 0, 5 हियर, करेक्ट. यहाँ पे 8, दिस इज 10, यहाँ पर 11, राइट. नेक्स्ट रो में लोएस्ट एंट्री है 3, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पर 15, यहाँ पर 10, ओवर हियर 3. यहाँ पर 0 एंट्री है, लीस्ट एंट्री है 2, तो यहाँ पे बचेगा 8 हियर. इट्स 5, 0, 0, 0. यहाँ पर सबसे लोएस्ट एंट्री है 7, तो यहाँ पे बचेगा 0, दिस इज 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पर 5. यहाँ पर सबसे लोएस्ट एंट्री है 4, तो यहाँ पर बचेगा 3, दिस इज 5, दिस इज 6, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पर 8. तो हमने रो रिडक्शन कंप्लीट कर दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज कॉलम रिडक्शन. मैम कैन यू थोड़ा आप रिपीट कर सकते हैं क्या इसको? मैं हाँ. What is my lowest entry in the first row? It's 5. So this 5 I subtracted from each other entry and I noted the subtraction here. ओके ठीक है. ओके राइट. नेक्स्ट रो में लोएस्ट एंट्री है 3. I subtracted 3 from every other entry of that row only. थर्ड रो में एंट्री है सबसे लोएस्ट 2, तो 2 मैंने सबसे सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड सो ऑन. So first step I completed row reduction, and now let us go for the column reduction. Okay, so मैं different color के साथ यहाँ पर put down कर रही हूँ. I hope this color is visible. Black के साथ करते हैं, ठीक है. So now tell me column wise. First column में 0 है क्या? It's there. Yes. So no change in first column. Second column में 0 है क्या? Yes. So no change in second column. Third column is also carrying 0. No change in third column. Fourth column is also having 0. So no change in fourth column. And fifth column is also having 0. So no change in last column. So column reduction यहाँ पर करने की ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ हमने रो रिडक्शन किया, कॉलम रिडक्शन करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी. So first 2 steps are completed at this point. It's clear? Yes. Okay. Now again let me draw the further case here. Yes ma'am. Yeah. So now we are going to allocate the values, row scanning and column scanning, and first of all we'll check out that whether I am having that 0 entries or not, else we'll go for the optimality. Okay, so this is J1, J2, J3, this is J4 and this is J5, A, B, C, D and this is E. तो मैं यहाँ पर ये सारी वैल्यूज लिख देती हूँ. दिस इज 508, 11, 508, 10 and 11. Then this is 0, 6, 15, 10 and 3. यहाँ पर है 8,
5 0 0 0 एंड यहाँ पर है 0 4 2 0 5 and this is 3 5 6 0 and 8. Okay, and now we have to do the step 3. What is that step 3? Row and column scanning. Correct? So first of all, row scanning will do. So let us go row wise. I can allocate this 0, right? क्योंकि एक सिंगल 0 है यहाँ पर. I can discard this column. Go to next row. यहाँ पर एक ही 0 है. So I have selected that. I am going to discard that column. ठीक है? Then come to third row. यहाँ पर 3 zeros है तो मैं कोई select नहीं कर सकती. Am I right? Come to next row. D वाला जो row है तो यहाँ पर एक single 0 है. I'll select that and I can discard that column. Next E row में कोई भी 0 बचा नहीं है. So I'll go column wise. Column में फर्स्ट कॉलम में 0 allocate हो चुका है, so I will not allocate it further. J2 में फिर से allocate हो चुका है, I will not allocate secondly. J3 में यहाँ पर सिंगल 0 है, so I'll select that and I'll discard this row. ठीक है. Then J4 में करने की ज़रूरत नहीं है. J5 नो zeros are there. ये सिंगल 0 था वो भी हट गया क्योंकि हमने स्ट्राइक आउट की है वो लाइन या रो. तो अब यहाँ पर हम फिर से अगर रो एलोकेशंस कॉलम एलोकेशंस पर जाए तो भी हमें कुछ अलग नहीं मिलने वाला है. सो वी completed our row scanning, column scanning here. Further, if we repeat that, we are getting into the loop, and loop में हमें कुछ नया नहीं मिलने वाला है. Agree with this, everyone? Yes. Okay. So now हमें क्या करना है? फोर्थ स्टेप में, दिस इज योर फोर्थ स्टेप. अब हम जो नॉन अनडिलीटेड एंट्रीज है उनके साथ डील करना है. अनडिलीटेड एंट्रीज, एंड वहाँ पर हमें रीअलोकेशन करना है. फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ अनडिलीटेड एंट्रीज. सो अनडिलीटेड एंट्रीज कौन सी है मैं यहाँ पर मार्क करती हूँ. दिस इज 8 11 15 3 2 5 6 एंड 8. इसमें से लिस्ट वैल्यू कौन सी है? 2. तो ये 2 वैल्यू हमें इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर ऐड करनी है, मीन्स एट दिस पोजीशन. सो 8 की जगह क्या आ जाएगा? अच्छा ऐड करना है. सॉरी 11 सॉरी 10. 10 हाँ यस. देन 5 की जगह क्या आएगा? 7. और इंटरसेक्शन कहाँ पर है? यहाँ पर. सो 0 + 2 विल बी 2. करेक्ट. और कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है नहीं हमारे यहाँ पर. सो रेस्ट ऑफ वैल्यू से हमें 2 को सब्ट्रैक्ट करना है. सो यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 13, यहाँ पे 1, here 0, over here 3, यहाँ पे 6 and यहाँ पर 4. So these new allocations now will enroll in the next matrix and will again repeat this step 3, row scanning and column scanning. So remember these entries and let us graph that. The rest of entries will be similar. तो मैं पहले यहाँ पर ये subtract कर लेता हूँ. This is ओके. यहाँ पर बी हट गया. ठीक है. सो विल राइट डाउन दैट दिस इज 35406 06. देन डी पे आएगा 04003 04003.
थर्ड रो आएगा 10 7 0 2 0, 10 7 0 2 0। सेकंड रो आएगी 0 6 13 10 1, 0 6 13 10 and 1। एंड फर्स्ट रो है 5 0 6 10 and 9, 5 0 6 10 and 9। सो यहाँ पर अब हमें फिर से स्टेप 3 रिपीट करनी है। रिपीट स्टेप 3, ठीक है। सो लेट अस रिपीट दैट। अब अलोकेशंस फिर से हमें रो वाइज करने हैं। सो रो वाइज यहाँ पर मैं एलोकेट कर रही हूँ, दिस आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड। रो वाइज यहाँ पर मैं एलोकेट कर रही हूँ, सो दिस कॉलम आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड। थर्ड रो में 2 zeros है, आई कैन नॉट एलोकेट। फोर्थ रो में 2 zeros है, आई कैन नॉट एलोकेट। लास्ट वाले रो में यहाँ पर एक सिंगल जीरो है, आई एम गोइंग टू एलोकेट एंड आई विल डिस्कार्ड दिस कॉलम। नाउ गो कॉलम वाइज। अब फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं कर पाएंगे, वी कैन नॉट डू इन सेकंड कॉलम इवन। थर्ड कॉलम में J3, सो यहाँ पर भी 2 zeros है, वी कैन नॉट एलोकेट, राइट। J5 J4 पर कुछ नहीं कर सकते। J5 में यहाँ पर एक जीरो है, आई कैन डिस्कार्ड द रो, राइट। नाउ फिर से मुझे चेक क्या करना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, कितने मिले हैं 1 2 3 4, 4 zeros आर देयर। जीरो एलोकेशन इज लेस दैन नंबर ऑफ रोज, करेक्ट। लेकिन यहाँ पर सब जीरोस डिस्कार्ड हो चुके हैं, लेकिन ये जीरो बचा है। तो जब तक आपके सारे के सारे जीरोस आइदर डिलीट नहीं हो जाते या फिर एलोकेट नहीं हो जाते, तब तक आपको रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग करनी है। सो रो एंड कॉलम स्कैनिंग यहाँ पर अभी ख़त्म नहीं हुई है। चल गो अगेन रो वाइज। सो मैं यहाँ पर एलोकेट नहीं कर सकती, कोई भी ज़ीरो नहीं है। बी में कोई भी ज़ीरो नहीं है, सी में नहीं कर सकते, डी में यहाँ पर ज़ीरो बचा है। सो आई एलोकेट दैट एंड आई कैन डिस्कार्ड दिस कॉलम। अब यहाँ पर चेक कर सकते हो आप कि आपके जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है इक्वल टू नंबर ऑफ रोज पर आ चुके हैं, करेक्ट। एंड नंबर ऑफ एलोकेशंस आई कैन राइट डाउन ओवर हियर। तो ये एलोकेशंस के क्या है, A is allocated to J2, B is allocated to J1, C is allocated to J5, D is allocated to J3 and E is allocated to J4। तो इनके साथ हम हमारा मिनिमम कॉस्ट भी लिख सकते हैं। दिस इज द मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू A2 is assigned to J2, तो ये कॉस्ट है 5 प्लस B1 to assign to J1, सो ये कॉस्ट है 3 प्लस C2 is assigned to क्या था ये J5, तो ये कॉस्ट है 2 प्लस D is assigned to J3, तो ये कॉस्ट है 9 एंड E is assigned to J4, तो ये कॉस्ट है 4। सो हमारी टोटल कॉस्ट आ गई, दिस इज 8 प्लस 2 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 4 23। सो हमारी जो मिनिमम कॉस्ट है असाइनमेंट की, जॉब असाइनमेंट की, वो आ गई 23। मैम आपने ये कैसे किया, एक बार और रिपीट करेंगे क्या? Yes. जे आपने जो J2 लिखा लास्ट, हाँ, ए जो है वो J2 मैंने असाइन किया है क्योंकि यहाँ पर जीरो जो है एलोकेशन हमें कर दिया है। जीरो एलोकेशन इज रिगार्डिंग टू द मिनिमम एंट्री जो हम रो वाइज एंड कॉलम वाइज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने फर्स्ट वाली स्टेप देखी होगी तो फर्स्ट वाली स्टेप में हमने क्या किया, इस 5 को हमने सेलेक्ट किया था एज अ मिनिमम एंट्री, तो इसके अक्रॉस हमें ये जीरो मिल रहा है ना। तो जब आपको बोला जाए, चलो बी सी डी ई यहाँ पर नहीं है, जब आपको बोला जाए कि ए को कोई भी एक जॉब असाइन करना है जिसका कॉस्टिंग कम हो, तो आप J2 को ही सिलेक्ट करोगे ना। जी जी, राइट। सो जहाँ जहाँ पर हमें ज़ीरो एंट्रीज मिली है रो रिडक्शन में या कॉलम रिडक्शन में,
वो जीरो वाली एंट्री आपको मिनिमम कॉस्ट असाइन कर रही है अक्रॉस द जॉब असाइनमेंट। सो इसलिए हम जीरो एलोकेशंस को ढूंढ रहे हैं एंड जीरो एलोकेशंस को ढूंढते वक्त हम एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम अप्लाई कर रहे हैं सो दैट माय असाइनमेंट विल गिव मी द मिनिमम कॉस्ट। ओके, ठीक है, ओके। सो ये ए जो है वो J2 को असाइन हो रहा है, B जो हो रहा है वो J1 को, C जो हो रहा है वो J5 को, D जो हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है J3 को, E इज गेटिंग असाइंड टू द J4। अब कॉस्ट कैसे निकाली? सो ये एलोकेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड इसके अक्रॉस जो आपकी कॉस्ट है ना वो आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स से आएगी। तो A को हम असाइन कर रहे हैं J2, तो ये आपकी कॉस्ट आ गई 5, तो वो मैंने यहाँ पर लिखी है, ठीक है। देन B को असाइन कर रहे हैं हम J1, तो ये कॉस्ट हमने लिखी यहाँ पर। C को असाइन कर रहे हैं हम J5 कर रहे हैं ना, हाँ, उसकी कॉस्ट है 2। D को असाइन कर रहे हैं हम J3, तो ये कॉस्ट आ गई 9, राइट। एंड E को असाइन कर रहे हैं हम J4, ये कॉस्ट आ गई 4। अब अगर आप यहाँ पर देखो विदाउट फॉलोइंग दैट हंगेरियन मेथड, सो मैं A को अगर असाइन करूँगी तो 5 असाइन करूँगी, राइट। B को असाइन करूँगी तो मेरे पास लिस्ट वैल्यू है 3, ये असाइन करूँगी। नाउ सी द पोजीशन, आपको पोजीशन वाइज असाइनमेंट करनी है, ठीक है। तो ये पोजीशन हट गई पहले रो में क्योंकि मैं रो वाइज जा रही हूँ, तो इसका नंबर पहले आएगा। कॉलम वाइज जाऊँगी तो शायद नंबर डिफरेंट आ सकता है, राइट। देन C को मैं असाइन कर रही हूँ रिमेनिंग 2, तो मेरे पास C को असाइन करने के लिए ऑप्शन कितने हैं? 1, 2 एंड 3, क्योंकि 5 ये फर्स्ट सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो में आता है, तो मैं इस फर्स्ट रो में एंड सेकंड कॉलम में कहीं और असाइनमेंट कर ही नहीं सकती लॉजिकली, ठीक है। देन B को अगर मैंने 3 असाइन कर दिया है तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो में मैं किसी और को असाइन नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इन दोनों को ऑलरेडी चूज किया है। अब मेरे पास क्या बचता है? 3rd, 4th एंड 5th कॉलम, 3rd, 4th एंड 5th रो। अब C को अगर मैं इनमें से किसी को भी असाइन करती हूँ, चलो मैंने यहाँ पर कर लिया इंस्टेड ऑफ दिस 2, तो मैं इस 2 को हटा देती हूँ जब मैं मैन्युअली कर रही हूँ विदाउट फॉलोइंग एनी एल्गोरिथम, तो इस 2 को मैंने कर दिया। तो ऑब्वियसली D को मैं आगे वाली वैल्यू असाइन नहीं कर पाऊंगी, 9। सो व्हाट इज लेफ्ट विथ मी? सो D के लिए मेरे पास क्या लेफ्ट होता है? कॉलम 5, कॉलम 4 एंड रो 5, रो 4। तो अब मेरे पास ये वैल्यू बचती है, हमारे। देन अगर ये वैल्यू सेलेक्ट करती हूँ तो ऑब्वियसली E के लिए मैं ये 4 असाइन नहीं कर सकती, मुझे कुछ और असाइन करना पड़ेगा, राइट। सो क्या असाइन करना पड़ेगा? 12 असाइन करना पड़ेगा। सो इन दैट केस एलोकेशन इज चेंजिंग एंड शायद कोई अगर दूसरा ही असाइन कर रहा है तो इस 2 के बजाय इस 2 को एलोकेट कर सकता है, तो अगेन आई कैन नॉट चूज दिस वन। सो मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा? अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, 4th को नहीं चूज करती तो मुझे कंपलसरी यहाँ पे आना पड़ेगा, हमारे। और अगर मैं यहाँ पर आ गई तो मैं 12 को एज इट इज कर सकती हूँ। सो ये चॉइस होगा नहीं मेरा। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी मैं इसे भी असाइन नहीं करके इसे असाइन करती हूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? इसके लिए आइदर 9 या फिर 7। अगर मैं 7 को चूज करती हूँ, इन दैट केस ये असाइन नहीं हो सकता, मुझे यहाँ पर इसे 10 को असाइन करना पड़ेगा, राइट। तो इस टाइप का मैनुअल एलोकेशंस करने के बजाय अगर हम पर्टिकुलर एल्गोरिदम फॉलो करें जो आपको मिनिमम कॉस्ट की तरफ लेके जा रहा है, दैट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। सो दैट्स नथिंग बट दिस हंगेरियन मेथड। I hope the things are clear to you. Yes. But still, we have done this Hungarian methods for a couple of problems, but still Hungarian method is not foolproof, as I told you earlier while starting this assignment problem and all. So यहाँ पर ये Hungarian method fail कहाँ पर होती है and हमें जहाँ पर time मिलता है वहाँ पर हमें क्या करना है, that also we have to look after. Now this is one more problem which is assignment problem, and now you can look at
the problem that number of rows are equal to number of columns, so assignment problem is balanced one. And additionally you have been given that question, if each draftsman's cost the company rupees 15.8 per hour including overhead cost, find the assignment of draftsman to task that will result in the minimum total cost. What would be the total cost? तो ये आपको फाइंड आउट करनी है. मीन्स ये हर एक ये जो कॉस्ट दे के रखी है दैट इज एडिशनल, बट अपार्ट फ्रॉम दैट 15.80 पर आवर ये असाइन कर रहा है. एंड दीज आर द नंबर ऑफ आवर्स. 60 hours is required for draftsman 1 to complete the task A. To complete task B, the same draftsman will require number of hours 50 and so on. तो आप जैसे ही number of hours मिनिमम करते हो, ऑब्वियसली 15.80 कॉस्ट पर आवर के हिसाब से हमें कॉस्ट मिनिमम यहाँ पर मिल जाएगी. सो प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली सिमिलर एज वी डिड द प्रीवियस टू. Go for it and check out the things. Okay, मुझे ना आपको केस फेल वाला एक प्रॉब्लम देना है. जस्ट होल्ड ऑन, आई जस्ट टेक वन प्रॉब्लम जहाँ पर हंगेरियन मेथड में टाइप हमें मिलता है. Yeah, right. Let us write it down. I guess this problem is not in the not there in PPT, so I'll just give it to you separately. Please note down this. Second problem है. Solve the following. Question is similar. Solve the following assignment problem to maximize the cell. Okay, ये maximum का problem है. Wait a minute. Okay, so question is how should the jobs be assigned to the various machines so that the total cost is minimized. So आपके पास machines दी है and यहाँ पर दिए हैं jobs. So I'll just write down that jobs and machines in this way. This is first column is of jobs. Machine 1, machine 2, machine 3, and this is machine 4. Okay, 1, 2, this is 3, 4. Okay. So ये है आपकी machine 1, machine 2, machine 3, this is machine 4. Okay, 4 machine है. This is J1, job 1, job 2, job 3, job 4. So over here I am having the cost as 5, 7, 11, 6, then this is 8, 5, 9 and 6, 4, 7, 10 and 7. This is 10, 4, 8 and 3. Yes. Let us now first of all complete the row reduction. Here step 1 and second column reduction. Once you do the column reduction, row reduction over here, a separate reduced matrix you should write down for the next step in the exam also while solving the problems of assignment. So let us select the least cost of each of the row and with that let us find out the further subtraction. So यहाँ पर minimum cost है 5, so remains your 0, your 2, this is 5 plus 6, 11, यहाँ पर 1, correct है. Then second row में the least cost is 5 once again, so here remains 3, 0, 4 and this is 1 once again. Next row में minimum cost है 4, so it remains 0 here, 3, 6 and this is 3 again. Next row में least cost है 3, so it remains 7 here, 1, this is 5 and this is 0. So हमने
रो रिडक्शन कंप्लीट कर लिया. नाउ गेट बैक टू द कॉलम रिडक्शन. सो कॉलम वाइज चलते हैं. फर्स्ट कॉलम हैज 0, सो नो चेंज इन फर्स्ट कॉलम. सेकंड कॉलम हैज 0, नो चेंज in second column. Third column has no 0, so minimum value I'll choose. So that minimum value is 4. So I'll have here 6 minus 4, it's 2. Here 0, this is 2, and यहाँ पर 1. And last column has 0, so no change in last column. So what I'm having is, after row reduction and column reduction, this matrix. So first row, yes, so I'll just write down that entries once again. This is M1, M2, machine 2, machine 3, this is machine 4, J1 job, J2, this is J3, and this is J4. So अब हमारी रो एंड कॉलम रिड्यूस्ड मैट्रिक्स ऐसे है. दिस इज 0, 2, 2, 1, दिस इज 3, 0, 0, 1, 0, 3, 2, 3, and this is 7, 1, 1, 0. Okay, I hope everybody is clear with this step. Now we are going to Yes. deal with the next step, row oblique column scanning. Yes, let me give the next color. Row wise, we are having single 0 here. Let us assign that. So column I can discard. Next row is having 2 zeros, so I am not going to allocate. I'll skip that row. Next row, we don't have any 0. Last row we are having 0 over here, so I'm going to allocate and I'm going to discard. Now rows are finished. Let us go column wise. Column 1 में already allocation हो चुका है, so we will move to next column. M2 में एक 0 यहाँ पर है, so I'm going to discard the row. M3 में कोई भी 0 नहीं है, so यहाँ पर हमें number of allocations कितने मिले हैं. I'll just write down that. So 3 allocations हमें मिले हैं. So number of allocations of 0 is less than number of rows. 3 is less than 4, correct? So हमें क्या करना है, स्टेप 4 पर जाना है. So that's our step 4. स्टेप 4 में हम क्या करते हैं, we are going to choose the least value of the, और ये हम लिख भी सकते हैं while writing down the problem in the exam. ना you may note down this stuff. Choose least value from non-deleted cell values, or simply numbers, and subtract from other values and add to the intersection points. Just by writing down this, you can do that stuff and you can rewrite your reallocated new matrix. So what we are going to do over here, so apart from the non-deleted or undeleted cells, you can say these are our number of cells जो delete नहीं हुई है, and amongst that I have to choose the least one. So 1 is the least one, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 1, here also 1, here 2, here 1, this is 0 here, and this is 0 here, correct? We subtracted, but at the intersection of points I have to add this value. तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम 3 की जगह पर, तो ये हो जाएगा 3 plus 1 4 here, and 1 plus 1 2 here. So ये पूरा रीएलोकेशन हमें नए मैट्रिक्स में फिर से लिखना है. So let us write down that in next row, next page. I'll just allocate that once again. So my values are, this is M1, M2,
M3, M4 your machines, J1, J2, J3, this is J4. ठीक है, and new values are, okay, new line के साथ ही लिखते हैं. New values are, this is 7000. So ये 7 हमने चेंज नहीं किया है, the rest of values are changing here. थर्ड रो है 0 to 1 3, 0 to 1 3. सेकंड रो है 4002, 4002, and this is 0111, 0111. Step 4 हमने की थी and we are getting back to step 3 once again. So again do the row and column scanning. कि ये आपका रीएलोकेटेड न्यू मैट्रिक्स है. ओके, सो लेट अस डू दैट. यहाँ पर एलोकेट कर दिया मैंने. सो कॉलम इज डिस्कार्डेड. J2 में मैं 0 को एलोकेट नहीं कर सकती. J3 आई कैन नॉट एलोकेट. J4 नाउ आई कैन नॉट एलोकेट टू J4 इको. एम आई राइट? कम टू कॉलम वाइज. कॉलम वाइज अगर हम यहाँ पर एलोकेट कर रहे हैं तो ये एलोकेट ऑलरेडी हो चुका है. कॉलम 2 में यहाँ पर 2 जीरोज है, मैं एलोकेट नहीं कर सकती. सेकंड नेक्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पर भी 2 जीरोज है, आई कैन नॉट एलोकेट. M4 में यहाँ पर 1 जीरो है, आई जस्ट एलोकेट हियर. करेक्ट? कुछ गलत किया क्या मैंने? करेक्ट. राइट ना? Okay, so this row I can delete, right? Yes. Again. And actually in column M1 there are 2 zeros. Yeah, I'm so sorry. That's what I'm checking out कि मैंने क्या मिस्टेक की. हाँ, so I cannot allocate to J1. So मैं J2 पर जाती हूँ, वहाँ पर भी नहीं कर सकते. J3 को वहाँ पर भी. Wait a minute. हम J1 को क्यों नहीं करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहे हो ना, we can allocate that क्योंकि row wise हम allocation कर रहे हैं first. कॉलम वाइज नहीं चेक कर रहे ना हम. फॉर J1 रो आई एम चेकिंग आउट. ओनली सिंगल जीरो इज देयर. वी आर एलोकेटिंग दैट. Okay. ओके, सो कॉलम आई कैन डिस्कार्ड. J2 को नहीं कर सकते, 2 जीरोज है. J3 को है ही नहीं जीरो. J4 को 3 जीरोज है तो कर नहीं सकते. देन कम टू द कॉलम वाइज. M1 को हम ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं तो ये जीरो तो डिस्कार्ड हो चुका है, कैंसिल हो चुका है ये जीरो. ठीक है. M2 को 2 जीरोज है यहाँ पर, हम वी कैन नॉट एलोकेट. M3 अगेन 2 जीरोज आर देयर, वी कैन नॉट एलोकेट. M4 को सिंगल जीरो है. कॉलम वाइज नाउ वी आर गोइंग टू गेट. तो मैं इससे डिस्कार्ड कर सकती हूँ. नाउ आई एम हैविंग दिस सेल्स ओनली. Yes, optimality is reached. सो कॉलम वाइज भी हमने कंप्लीट किया, रो वाइज भी हमने कंप्लीट कर दिया, बट स्टिल 2 जीरोज आर देयर. सो आई हैव टू अगेन रिपीट द प्रोसेस. तो जब तक जीरो सारे के सारे आइदर कैंसिल नहीं होते या रिलोकेट नहीं होते, ये रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग मुझे कंटिन्यू करनी है. करेक्ट? सो लेट अस डू दैट. रो वाइज J1 के रो में नहीं कर सकते, J2 के नहीं कर सकते, J3 के नहीं कर सकते. कॉलम वाइज M1 नो. M2 अब मेरे पास 1 है, सो आई कैन नाउ डिस्कार्ड दिस. करेक्ट? तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें सिर्फ 3 जीरोज मिले हैं. सो सेम स्टेप आई एम गोइंग टू रिपीट. नंबर ऑफ जीरोज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज. सो यहाँ पर हमारी ऑप्टिमिलिटी रीच हो ही नहीं रही है. अगेन आई हैव टू रिपीट द प्रोसेस. क्या प्रोसेस रिपीट करनी है? जो बचे हुए एलोकेशन से उसमें से लिस्ट वैल्यू ढूंढनी है, विच इज़ दैट इट्स 1. तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा 0. यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करनी है 0 सभी से 1 सभी से. सो यहाँ पर भी मिलेगा 0, यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पर मिलेगा 2, यहाँ पर मिलेगा 1. एंड इंटरसेक्शन वाला पॉइंट कौन सा है? ये सिंगल पॉइंट है इंटरसेक्शन का. वहाँ पर हमें मिलता है 4 + 1 5. सो ये मेरा न्यू एलोकेशंस है. नाउ आई अगेन राइट डाउन दैट न्यू एलोकेशंस इन न्यू मैट्रिक्स एंड आई रिपीट द रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग. 1 2 दिस इज 3
this is 4 1, this is 2 3 and this is 4. M1 M2 M3 and this is M4. This is J1 J2 J3 and this is J4. Okay, let me write down the values. This is 7 0 0 0. now यहाँ पर कुछ चेंज नहीं है. थर्ड रो में यहाँ पर 0 ही रहेगा. दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 2 हियर. थर्ड रो में 5 0 0 2 ये. एंड फर्स्ट रो में 0 0 0 0. ठीक है. ओके, यहाँ पर फिर से हमें स्टेप 3 की तरफ जाना है. स्कैनिंग वंस अगेन, रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग. अब यहाँ पर देखो J1 रो में सारे के सारे मेंबर 0 है. आई कैन नॉट चूज. इज दैट राइट? J2 में मैं चूज नहीं कर सकती हूँ. J3 आई कैन नॉट चूज, 2 zeros आर देयर. J4 में भी मैं चूज नहीं कर सकती. नाउ लेट अस गो कॉलम वाइज. M1 में 2 zeros है, नहीं चूज कर सकते. M2 में 3 zeros है, वी कैन नॉट चूज. M3 में 4 zeros है, वी कैन नॉट चूज. एम आई राइट? एंड M4 में 2 zeros है, वी कैन नॉट चूज. गॉट इट? सो हंगेरियन मेथड फेल्स ओवर हियर कि हमें यहाँ पर एलोकेशंस मिल ही नहीं रही है. सो यहाँ पर सब तरफ टाई हो रहा है. एम आई राइट? टाई हो रहा है मीन्स सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि एट एवरी पॉइंट, एट एवरी सेल, वेन एवर वी आर गेटिंग 0 मीन्स दैट रिफ्लेक्ट द मिनिमम कॉस्ट फॉर द allocation of jobs to the worker or workers to the job. So over here I am getting all the 4 zeros means J1 job I can assign to any one of the machine. Are you getting my point? Yes. Okay. Similar way for J2 job I can assign that job to machine M2 or machine M3. That is also possible. So here also we are having time. J3 job I can assign for machine 1 for machine 3 as well. J4 job I can assign to M2, M3 and M4. So we are having here different cases of tie-ups. So what to do in this case? So here onwards the row column scanning will not work. Not that Hungarian method is working for the optimality condition. So in that case, considering the tie-ups in the entire matrix, I can go by a random selection here. तब तक मैं random selection नहीं कर सकती हूँ, right? So I have to follow the Hungarian method strictly. अब यहाँ पर मेरी case 1 क्या होगी? What is my case 1? I can allocate J1 to M1, right? क्यों? क्योंकि मैंने ये अगर सेलेक्ट किया, I'll just make the box. मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये हट जाएगा. Am I right? और लेट मी ड्राफ्ट इन दिस वे. अगर मैंने ये सेलेक्ट किया तो ऑब्वियसली मैं इन तीनों को डीसेलेक्ट कर रही हूँ. Am I right? क्योंकि कोई भी मैं चूज कर सकती हूँ ना. J1 हैज द रैंडम चॉइस. हेलो. Yes. हाँ. सो मैं सारे केसेस आपको बता रही हूँ बिकॉज हंगेरियन मेथड इज नॉट वर्किंग ओवर हियर. रो स्कैनिंग, कॉलम स्कैनिंग, वी आर नॉट गेटिंग द ऑप्टिमिलिटी कंडीशन. सो जहाँ पर ये टाइप आ रहा है, हंगेरियन मेथड इज नॉट वर्किंग. इन दैट केस द रैंडम चॉइस वी कैन डू. सो मैंने J1 को M1 को असाइन कर दिया तो ऑब्वियसली दिस 3 आई एम नॉट सेलेक्टिंग. राइट? अब J2 को चॉइस करने के लिए मेरे पास दो ऑप्शंस है, आइदर दिस वन और दिस वन, M2 और M3. सपोज मैं यहाँ पर M2 सेलेक्ट कर रही हूँ, मीन्स ऑब्वियसली आई एम डी सेलेक्टिंग दिस वन. एम आई राइट? Yes. देन J3 को अब मेरे पास 2 ऑप्शंस है, बट आई कैन नॉट सेलेक्ट दिस वन एज दिस जॉब, दिस मशीन इज ऑलरेडी एंगेज विद J1. So I left out the option this one only for J3.
correct? Yes. Okay. And now come to the J4. Now I am left with the option M2, M3 and M4. Out of that, this 0 is already selected in the column. रो में या कॉलम में एक ही बार एक ही 0 आना चाहिए, allocate होना चाहिए. आना चाहिए means allocate होना चाहिए. So M2 वाला column is already allocated. So this I cannot choose. M3 वाला also allocated. I cannot choose this one. So only option left with me is this one. So my allocations are J2 को M2, J3 को M3 एंड J4 को M4. ये आपकी पहली केस है. नाउ केस माइट बी डिफरेंट. इफ आई एम सेलेक्टिंग J1 allocation job assigned to M2. Correct? So in that ways, we will have to go through all the 4 cases. All the 4 cases, yes. Okay. So my case 2 will be this one. I'll get with a different color. This is your case 2. So now instead of this 0, मैं अगर इसे select कर रही हूँ, then I'm obviously deselecting these. Right? Then J2 के केस में अगर मैं इसे select कर रही हूँ तो मैं इसे deselect कर सकती हूँ. So I'm having the option of selection is this one. राइट. J3 को अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया तो ऑब्वियसली ये मैं सेलेक्ट नहीं कर सकती हूँ. सो आई एम हैविंग ऑप्शन टू सेलेक्ट दिस वन. अब ये तीनों भी असाइन हो चुके तो J4 के लिए मेरे पास यही ऑप्शन बचता है. सो मैं न्यू सेलेक्शन केस 2 इज J1 to M2, J2 to M3, J3 to M1 and J4 to M4. Correct? In similar pattern, the rest of 2 cases I can check out. मैं पिंक कलर के साथ शो करती हूँ. अगर मैंने इसे सेलेक्ट किया, नाउ दिस वन, सो मैं इन तीनों को डिस्कार्ड कर रही हूँ. अगर इसे सेलेक्ट किया तो ऑब्वियसली मैं इससे सेलेक्ट नहीं कर सकती हूँ. सो आई एम हैविंग द ऑप्शन दिस वन. करेक्ट. नेक्स्ट रो में अब मैं ऑलरेडी यहाँ पर M3 को असाइन कर चुकी हूँ J1 के अक्रॉस, तो ऑब्वियसली दिस आई कैन नॉट सेलेक्ट. तो मेरे पास यही ऑप्शन है सेलेक्ट करने के लिए. एंड लास्टली ये तीनों भी सिलेक्टेड है तो मुझे लास्टली यही ऑप्शन मिलता है. तो केस 3 क्या होगी आपकी? आई होप यू आर गेटिंग दिस ओवरराइटेड थिंग्स. Yes, yes, sir. Yeah. J2 to M2, then J3 to M1 and J4 to M4. एंड लास्ट पॉसिबिलिटी है यहाँ पर दिस वन. ब्लैक के साथ करती हूँ. अगर मैंने इससे सेलेक्ट किया तो ऑब्वियसली दीज आई एम क्रॉसिंग आउट. राइट. इसे अगर हमने सेलेक्ट किया तो J2 के पास 2 ऑप्शन है, मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर सकती हूँ. तो और एक केस जनरेट हो सकती है. तो अगर मैंने यही कंटिन्यू किया तो ऑब्वियसली मैं ये चूज़ नहीं करूँगी J2 के लिए. है राइट. तो ये मैं चूज़ नहीं कर रही हूँ J2 के लिए. J3 के लिए ये हो गया, ये हो गया. अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, मैं इसे या इसे चूज़ कर सकती हूँ. तो अगेन 2 डिफरेंट केसेस आर गेटिंग फॉर्म. हमारे J4 को अगर मैं इसे असाइन कर रही हूँ और इसे मैं डी सेलेक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास ऑप्शन बचता है यही. आई एम सॉरी. No. 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 एक ही मिनट. M2 और M. Actually, we have to unlock. यहाँ पर मैं J2 अवॉइड कर रही हूँ तो ये ऑप्शन मेरा हो M2. सकता है. दिस कैन नॉट बी द ऑप्शन. ये ऑप्शन नहीं हो सकता. 1, 2, Yeah. 3 and 4. राइट. सो यू कैन चेक आउट द मल्टीपल केसेस ओवर देयर. इसके और भी केसेस हो सकती है, मैं सिर्फ आपको 4 दिखा रही हूँ यहाँ पर. सो J1 इज असाइंड विथ M4, then J2 is assigned with M2, J3 is assigned with M1 and J4 is assigned with M3. और कई केसेस हो सकती है इसकी. बट व्हाट आई हैव टू लुक फॉर कि यहाँ पर मिनिमम कॉस्ट क्या है. तो जैसे ही आपको ये सारी केसेस मिलती है ना, हमारे लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम में. 1 एलोकेशन एंड 2 मिनिमम कॉस्ट. तो एलोकेशंस आपको बहुत सारे मिल रहे हैं.
कॉस्ट मिनिमम कहाँ पर मिलती है वो आपको क्रॉस चेक करना है जहाँ पर टाइप आ रहा है. सो यहाँ पर आप कॉस्ट चेकआउट कर सकते हो. तो मुझे जैसे लगता है कि केस 1 के लिए ना आई हैव द चॉइस M1, M2, M3 एंड M4. I'll get back to the values. M1 means 5 plus M3, M2 sorry, it's 5 plus M3 it's 10 plus M4 J4 के लिए so it's 3. So ये हो रहा है 10 plus 10 23. सेकंड एलोकेशन देखते हैं यहाँ पर क्या आता है. दिस इज M2, M3, M1 एंड M4. ओके, J2 के लिए M2 so it's 5, M2, M3 it's 11, M3 M2 था क्या, एक ही मिनट, M2 M3 था. ओके, I'm sorry. So M2 is 7, M3 सेकंड के लिए it's 9 एंड ये था M1 I guess and M4 3. So 16 plus 7 23. So I'm getting the same cost here. Likewise you can check out for the rest of. अगर सब सिमिलर आ रही है so that is our minimum cost and any kind of allocations you can do here. Case 1, case 2, case 3, case 4 और सब केसेस में से एक एलोकेशन आपको प्रॉपरली वहाँ पर लिखना है. दैट्स इट. तो ये सारे एलोकेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है. फ्यू मोर एलोकेशंस आई मे हैव क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं. करेक्ट. Yes. I hope that tie-up you are understanding through this problem, and multiple cases or multiple allocations we may get, but our main object is allocation and second object is to minimize the cost. So that two things we can focus while solving the problems of assignments, right? Yeah. Okay, so we can come up with a few more problems of assignment problem. Likewise, you can go through that. I'll do one thing. I'll upload the question bank as well of assignment problem while uploading this video on our classroom. And please go through couple of problems of assignments at your own so that you can understand the method and the algorithm included in it. Apart from that, two more cases yet we have not discussed from the assignment problem is maximization case, how to maximize the profit, because right from start we are dealing with the problems of minimizing cost while assigning the jobs to the workers. So we'll discuss one different category of maximization case in assignment problem. So that part is yet remaining, and another is the unbalanced problem, how to address that. So that problem also we have to consider. And third part which is remaining from assignment problem is the restrictions to the assignments. So all that three aspects we can discuss in our next session, and with these three categories we can conclude our unit 2, and further we can start with the unit 3 or other unit 4. Okay, any doubts to anyone?